सीजनल वेरिएशंस कॉज करता है, ठीक है ना। तो ये सीजनल वेरिएशंस और पूरे इंडिया को जो सीजनल डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न प्रोवाइड करता है, in this way, by providing a distinct seasonal pattern to almost all part of India, it acts as an unifying bond. It is the monsoon that brings rainfall for almost all part of India. ठीक है ना, इंडिया के हर एक हिस्से में जो भी बारिश होती है वो मॉनसून के द्वारा होती है, ठीक है ना। सो बाय ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर द होल नेशंस, बाय ब्रिंगिंग रेनी सीजन फॉर होल नेशन, it acts as an unifying bond. It doesn't matter that some part receives more than 400 centimeter rainfall and another part receives less than 25 centimeter of rainfall. ये इससे आपका फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि रेनी सीजन इज कॉज ड्यू टू मॉनसून विंड्स। कहीं ज्यादा भी हो रहा है, कहीं कम भी हो रहा है, बट बारिश हो रही है मैक्सिमम किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू मॉनसून विंड। इन दिस वे ऑल्सो इट एक्ट एज एन यूनिफाइंग बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले ब्रिंगिंग सीजनल पैटर्न फॉर द होल नेशन, causing rainfall almost 90%, more than 90% of area of India is generally receives their rainfall by monsoon winds. और क्या है भाई? It brings seasons, हाँ, cultural festival for the people of India. हमारा जो monsoon है ना, that is associated with many cultural festivals, ठीक है ना। हमारे यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह में, कहीं पे बैसाखी है, कहीं पे बिहू है, कहीं पे पोंगल है, कहीं पे कुछ है। ये सारे फेस्टिवल्स जो है दैट इज ड्यू टू द मॉनसून विंड्स, ठीक है ना। तो इन दिस वे ऑल्सो इट एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। और क्या है? इट प्रोवाइड्स वाटर to set our agricultural calendar. You know that India's economic development largely depends on agriculture, and agricultural activities and farmers eagerly await for the arrival of monsoon. Agricultural calendars generally depends upon the arrival of monsoon, and that brings agriculture in motions. So by providing agricultural activities throughout the country, monsoon acts as a unifying bond. It is the monsoon winds that provide water to our rivers and convert India into a single river system, and its water is used for satisfying all economic activity of India. In this way also it acts as a unifying bond, ठीक है। पूरे कंट्री में मॉनसून क्लाइमेट देकर, पूरे कंट्री में डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न देकर, पूरे कंट्री के लोगों के कल्चरल लाइफ को अफेक्ट करके, फेस्टिवल को अफेक्ट करके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, all depends upon availability of water which is provided by monsoon winds. In this way it also affects our economy, ठीक है ना। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करता है और पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांटता है, ठीक है ना। So in this way, monsoon act as a unifying bond. So Shivika and other, do you have any confusion that how monsoon act as a unifying bond? किसी को कोई confusion है? Please say yes or no. No, ma'am. No, ma'am. लिख लोगे कि पॉइंट्स प्रोवाइड करें? छोटा छोटा पॉइंट्स। नो मैम लिख लेंगे। हाँ No, ma'am, लिख लेंगे। ओके बेटा, ओके।
तो और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, और नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, why does the rainfall decreases from east to west in northern plains? Why rainfall decreases from east to west in northern plains? Tell me. Why rainfall decreases? Ma'am, because there is a decrease in moisture of wind. हाँ ठीक है, वेरी गुड रोहिणी. Decrease in moisture, decrease of moisture in wind as we move from east to west. Why winds in Ganga plain? तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है बीच का लाइन में, winds blow towards west and west. Why? What is the reason behind blowing of wind towards west in Ganga plain? क्या कारण है आपका? गंगा वैली में वेस्टवर्ड फ्लो देखा जाता है विंड का. यस, एनीवन? Can you tell me what factors affects the direction of wind? What factors affects the direction of wind? कोई बताएगा? कहीं भी. अब जैसे विंड का हम पूछे कि why the amount of rainfall decreases as winds move from east to west. तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून है वो उनको बैरियर आपका किधर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं. म्यांमार में अराकान हिल्स जो है बैरियर के रूप में एक्ट करता है, तो वहां से विंड मुड़ जाता है. कुछ विंड क्रॉस करके म्यांमार में इंटर करता है और कुछ विंड. यस यस, वेरी गुड इशिका. यस, करेक्ट आंसर इशिका. तो हम बता रहे थे कि अराकान माउंटेन के कारण विंड डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स वेस्ट और वेस्ट ऑफ बंगाल से इंटर करके आपका गंगा वैली में वेस्टवर्ड फ्लो करता है. दूसरा ऑब्स्ट्रक्शंस वे ऑफ बंगाल ब्रांच को मिलता है पूर्वांचल के थ्रू. वहां पर आपका फनल शेप्ड वैली में मेघालय में हेवी रेनफॉल कॉज करता है, पूर्वांचल के जोन में हेवी रेनफॉल कॉज करता है, और कुछ विंड जो है उसके हाइट को क्रॉस करके उधर भी जाता है, और कुछ जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पूर्वांचल हिमालय they deflected towards west and they are attracted towards the center of किधर हाई प्रेशर और लो प्रेशर. These winds attracted towards the center of high pressure or low pressure? Low pressure. Yes, wind always move from high pressure to low pressure. हमारा लो प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. सो गंगा वैली में विंड जो है इसको जनरली किधर ब्लो करती है? टुवर्ड्स वेस्ट, अट्रैक्टेड बाय द सेंटर ऑफ लो प्रेशर बेल्ट. मेरा एक क्वेश्चन था उसी में ये पूछे थे कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स और मॉडिफाई द डायरेक्शन ऑफ विंड. क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से विंड अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है. अभी सारा कुछ हम अभी बताए हैं, अभी तुरंत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तुरंत बताए हैं. चलो बताओ अदिति सिंह ऑफ 9A. सिर्फ इशिका बताई है फैक्टर्स, और कोई नहीं बताया. मानस राज, रोहिणी, कोई बताओ. व्हाट आर द फैक्टर्स which are helpful in changing the direction of wind? सबसे पहले अभी जैसे बताया wind always move from high pressure to low pressure. तो जहां भी लो प्रेशर होगा that attract the wind towards their center. तो चाहे हाई प्रेशर, यस मानस राज, दूसरा फैक्टर भी सही है. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करता है, इसलिए जहां भी लो प्रेशर होगा उधर विंड का मूवमेंट देखने को मिलेगा. दूसरा फैक्टर होता है माउंटेन एज ए बैरियर. अगर विंड के वे में, रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए, अगर तुम ही चलते हो कहीं और बीच में कोई बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान है या दीवार आ जाता है तो मुड़ जाते हो कि नहीं? मैम रोटेशन ऑफ प्लैनेट हो सकता है. हाँ बिल्कुल, वो कोरियोलिस इफेक्ट उसी को एक्सप्लेन करता है.
समझ गए ना? यस, आपका ऋषिकेश आप लोगों का भी देखें तो पहला फैक्टर होता है क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एज विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरा फैक्टर होता है माउंटेन एज ए बैरियर। इफ इन द डायरेक्शन ऑफ विंड और इन द वे ऑफ विंड, विंड हवा चल रही है और उसके डायरेक्शन में कोई पहाड़ आ जाता है, उसके रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है एज ए बैरियर, देन इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन। या तो कोशिश करेगा कि पहाड़ को क्रॉस कर जाए या फिर घूम जाएगा। और तीसरा फैक्टर है वही ऋषिकेश जो बोल रहा है फेरस लॉ, या फिर शिविका बोली कोरियोलिस इफेक्ट, और भी बच्चे बोले ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट ऑल्सो विंड चेंज देयर डायरेक्शन। कोरियोलिस इफेक्ट या फेरस लॉ क्या बताता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एज विंड क्रॉसेज इक्वेटर they deflect towards their right in northern hemisphere and towards their left in southern hemisphere. In this way, due to Coriolis force, Coriolis force क्या है? Rotation of the earth from west to east on its axis. Due to Coriolis force also wind change its direction. तो तीन ही मेन फैक्टर होता है, समझ गए ना? एक हो गया आपका सेंटर ऑफ लो प्रेशर, दूसरा हो गया आपका माउंटेन when it act as a barrier, और तीसरा हो गया कोरियोलिस फोर्स। तो कहीं पर भी अगर आपका क्वेश्चन आता है और आपको सही से पता नहीं है कि यहाँ पर क्या फैक्टर है, तो आप ये तीन बात को लिख सकते हैं, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एज ए बैरियर, एंड ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट विंड चेंज देयर डायरेक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड के किसी पार्ट में अगर आपसे कोई पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि क्यों यहाँ पे ऐसा विंड का डायरेक्शन हो गया, हम लोग पढ़ते हैं ना साइक्लोनिक डिप्रेशन, डिप्रेशन हो गया सेंटर ऑफ लो प्रेशर, ठीक है ना? जब बीच में लो होता है तो नेचुरली उसका सराउंडिंग में हाई होगा, और जब चारों तरफ से हवा सेंटर की ओर चलेगी तो वो तूफान वाली स्थिति तो होगा ही। सपोज करो कि तुम बीच में खड़े हो जाओ और चारों तरफ से पंखा लगा दो, तो उड़ने लगोगे ना, पूरा सब कुछ उड़ने लगेगा ना आसपास का। तो वही चीज है, सेंटर में लो प्रेशर और चारों तरफ से हाई प्रेशर है तो साइक्लोनिक इफेक्ट होगा और तेज हवा चलेगी, आंधी तूफान की स्थिति हो सकती है। तो विंड चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यू टू थ्री फैक्टर्स। नंबर वन, रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नंबर टू सेंटर ऑफ लो प्रेशर, एंड नंबर थ्री इज if mountain act as a barrier on the way of wind। तो कहीं से भी पूछा जाएगा, लिख लोगे? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अमित मिश्रा No, अभी ma'am. आया है? अमित मिश्रा जरा सा अपना वीडियो ऑन करो तो, तुम अभी आया है, जरा देखे तो कौन है अमित मिश्रा। और अभी क्यों ज्वाइन किया बेटा? हम इतने लेट में तुमको दिए हैं एंट्री। अमित मिश्रा वीडियो ऑन करो बेटा। गिव मी रीजंस। यस, हाँ बोलो। स्नैप मी मतलब क्या बोलना? ज्वाइन करने का क्या बोल रहा है बेटा? अमित, व्हाट डू यू वांट टू से? कुछ समझ में नहीं आया। ऑप्शन नहीं था मैम ज्वाइन करने का, क्यों? स्नैप में तुम जुटे हुए नहीं हो? क्या ऑप्शन नहीं था? क्या बोल रहा है तुम? जरा वीडियो ओपन करो तो जरा देखे तो तुमको एक बार। ओपन योर वीडियो अदर। हाँ, क्या हो गया? क्या ऑप्शन नहीं था बेटा? मैम स्नैप होमवर्क में ज्वाइन का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था, मतलब आपका क्लास ही ये शो अप नहीं हो रहा था। अच्छा मैम बहुत बार इशू होता है, बहुत सारे टीचर। अच्छा, ओके, लेकिन अभी से तुम लोग ये रखना कि हम ही क्लास लेंगे, ठीक है ना? रिवीजन क्लासेस चल रहा है, जिसको जैसे मतलब रूटीन में थोड़ा ये होने की वजह से अब हम ही लेंगे, तो क्लास रहेगा क्रिएटेड, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, ओके मैम। ओके। एनी क्वेश्चंस? Now my question is give reason as to why। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है, गिव रीजंस।
seasonal reversal of wind direction takes place over Indian subcontinent. Why seasonal reversal of wind direction takes place over Indian subcontinent? कोई बताएगा? Why seasonal reversal? Ma'am, please repeat the question. Why seasonal reversal of wind directions takes place over Indian subcontinent? इंडिया में विंड्स जो है रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन सीजन. एक तो ये फैक्ट्स ही बता रहा है. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों सीजन चेंज होने के साथ साथ विंड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है? एक लाइन में है. Ma'am, due to difference in pressure. Yes, very good. Due to differences in pressure conditions. During hot weather season, low pressure created over India that attract the wind, and that is the beginning of rainy season. And when low pressure converted into high pressure belt, that is responsible for reversing the direction of wind towards sea. So hot weather season जो है attract करता है, end of rainy season जो है that is responsible for changing the direction of wind from land area to sea area. Cold weather season में departure होता है, hot weather season में arrival होता है. यही ना मतलब है. और ये दोनों क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन प्रेशर कंडीशन. एक लाइन में आंसर क्या होगा? ड्यू टू डिफरेंसेस इन प्रेशर कंडीशंस. यस, सभी को समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल. व्हाई तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल? Because of northeast monsoon wind. Yes, because of northeast monsoon wind. क्या होता है northeast monsoon wind? Ma'am, when they blow from up of Bay of Bengal, they receive some moisture. हाँ, ये यहाँ पर भी आंसर वही है. ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट ओवर बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज द टाइम ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. आप इंडिया का ट्रायंगुलर पेनिनसुलर रीजन देखे हैं जो कि टर्न हो जाता है आपका नीचे का जो तमिलनाडु कोस्ट का एरिया है, दैट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ these northeast monsoon of Bay of Bengal. These, as Bay of Bengal is the center of low pressure, so these winds carry with them with little amount of certain amount of moisture, which is responsible for causing rainfall in over Tamil Nadu coast. क्योंकि कोस्टल लोकेशन है और साइक्लोनिक डिप्रेशन अंडमान सी के ऊपर होने के वजह से जो है वहां पे थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है. एटमॉस्फेयर में क्या है? नमी ज्यादा होता है, विंड में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, और उसके चपेट में जो भी ईस्टर्न कोस्टल रीजन का एरिया आता है वहां पे बारिश होती है. तमिलनाडु में खास करके बोला गया है विंटर रेन बिकॉज ड्यूरिंग समर इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एज इट कम्स अंडर द रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट. साउथ वेस्ट मानसून के समय वेस्टर्न घाट का रेन शैडो एरिया में आता है. उधर से तमिलनाडु आते आते इंटीरियर हो जाता है, मॉइस्चर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो वो रेन शैडो एरिया में है. गर्मी में ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है, और कोस्टल लोकेशन होने के कारण अब जब अंडमान सी के पास साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है बे ऑफ बंगाल में, उस समय आपका साउथ वेस्ट मानसून नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव होता है, विच जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड, बट एज दे क्रॉसेस Bay of Bengal, they bring moisture and cause rainfall in Tamil Nadu coast. आई बात समझ में? ऐसे नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है? That generally originated from land area and it becomes dry. But इंडिया का जो सी सराउंडिंग है उस समय बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशन होने के कारण वहां पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी सैचुरेशन लेवल से ज्यादा होता है, और उससे जो बारिश होती है वो कोस्टल एरिया को अफेक्ट करती है. So is there any confusion? किसी को इसमें कुछ पूछना है? आ गया समझ में?
कि तमिलनाडु में इस विंड से वर्षा होती है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके आता है, बाकी जगह में इस विंड से वर्षा नहीं होती है। चलो थोड़ा सा जो इससे रिलेटेड है वो हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेम 3 परमानेंट विंड। व्हाट इज द नेम गिवन टू 3 परमानेंट विंड? परमानेंट विंड वैसा विंड है दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर, ये बता दे आपको। आपको बताना है 3 परमानेंट विंड का नाम। यस, 3 परमानेंट विंड। हीट जोन पढ़े थे ना जी, उसी पर आपका डिपेंड करता है विंड सिस्टम भी। एनीवन? कोई बताओ 3 परमानेंट विंड। आता है या फिर हम ही बताएं? हाँ ठीक है शिविका, वो जो बोली हो वो कंप्लीट नहीं है, एक सही लिखी है, सेकंड वाला। पूरे वर्ल्ड में परमानेंट विंड जो है वो 3 हैं। मैम ट्रेड हाँ। विंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा? दूसरा? यस, वेरी गुड आलोक वर्मा, वेरी गुड बेटा। तीसरा? Easterlies. Yes, polar easterlies. Number 1 is trade wind, number 2 is westerlies, and number 3 is polar easterlies. These 3 winds are known as permanent wind as they blow throughout the year. ये सालों भर ब्लो करते हैं, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में, कभी नदर्न हेमिस्फीयर में, सालों भर ये ब्लो करते हैं, इसीलिए ये परमानेंट विंड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेड विंड? ट्रेड विंड किसको कहते हैं? व्हाट इज ट्रेड विंड? एनीवन? व्हाट इज ट्रेड विंड? Come on fast. बता रहे हो, जानते हो? ट्रेडी विंड का तो सारा इफेक्ट है हमारे इंडिया के मॉनसून पर, वही ना कन्वर्ट होता है। एनीवन? कोई बताएगा? जल्दी बताओ। शिविका, ऋषिकेश, रोहिणी, हर्ष, हर्षिका। Wind blowing steadily towards equator. ऐसे डिफाइन करोगे बेटा? आलोक वर्मा भी लिख रहा है, उस तरीके से नहीं। क्या डेफिनेशन होना चाहिए? व्हाट इज ट्रेड विंड? Trade wind, the winds that blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. ऐसे नहीं, हम बता रहे हैं वैसे लिखो। What is trade wind आता है तो आपको लिखना होगा the wind that blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. The winds that blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt is called trade winds. The winds that blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. Written or not? लिखा?
से यस और नो, सही तरीका जो है वो पता होना चाहिए। लिखे या नहीं लिखे, समझे या नहीं समझे? Yes. Okay, the wind that blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt। अब क्या है इसका फीचर्स? इस विंड का फीचर ये है कि दे ब्लो ऑन देयर ओन ट्रैक, दीज आर परमानेंट विंड, दे ब्लो ऑन देयर ओन ट्रैक। ये अपने ट्रैक पर ही चलता है, यानी कि घूमता नहीं है, जो एक रास्ता बना हुआ है उसी पर ब्लो करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ट्रेड, ठीक है ना। ट्रेड, द वर्ड ट्रेड इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड ट्रेड विच मीन्स ट्रैक। ये जो ट्रेड वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड ट्रेड विच मीन्स ट्रैक, वे और रास्ता। तो चूंकि ये विंड जो है वो अपने पाथ पर ही कांस्टेंट स्पीड में, दिस इज नॉट फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, इसका स्पीड जो होता है वो मेंटेन रहता है। इट इज स्टेडी विंड्स that blow at their own constant speed, that blow on their own track from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt, then it is called trade wind। इसका दो पार्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड का क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यही डायरेक्शन है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर दे डिफ्लेक्ट। दूसरा जो परमानेंट विंड है उसका क्या नाम दिया गया है? वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम subtropical high pressure belt and blow towards subpolar low pressure belt। The winds that blow from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt in both hemisphere, दोनों हेमिस्फीयर में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो ब्लो करे बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन इट इज कॉल्ड वेस्टरलाइज, ठीक है। पछुआ हवा जिसको कहते हैं, ये भी परमानेंट विंड है। और तीसरा जो परमानेंट विंड है वो कहलाता है पोलर ईस्टरलाइज, दैट originated from polar high pressure belt and moved towards subpolar low pressure belt, ठीक है ना। The wind that moves, that blow from polar high pressure belt to subpolar low pressure belt in both hemispheres, then it is called polar easterlies। And these permanent winds are caused due to डिफरेंट प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। पूरा अर्थ जो है अल्टरनेटिवली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट में डिवाइडेड है, ड्यू टू विच 3 परमानेंट विंड्स राइजेस which are known as trade wind, westerlies and polar easterlies, ठीक है। तो कैन यू नेम द प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ? अर्थ का प्रेशर बेल्ट कौन कौन है, बताओगे? कोई बताएगा कितने प्रेशर बेल्ट हैं? अभी तुरंत हम जब विंड एक्सप्लेन, हाँ हाँ बताओ बताओ, हाँ नाम बताओ। Subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, subtropical high pressure belt and tropical low pressure belt। यस ठीक है। देखो सबसे पहले इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हुआ, बोथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के पास। उसके बाद आपका
फिर हाई प्रेशर है तो उसके बगल में लो प्रेशर होगा ही, वो हो गया आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई. So the whole earth is divided into 4 different pressure zone and that gives rise to permanent wind. These winds are trade wind, westerlies and polar easterlies. अब कोई पूछेगा तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा इसमें, बता दोगे ना. अल्टरनेट हाई प्रेशर लो प्रेशर होने के कारण विंड का डायरेक्शन अलग अलग में है और कुछ विंड सालों भर चलते हैं. कभी नदर्न हेमिस्फीयर में उसका इफेक्ट होगा, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में होगा. दे आर परमानेंट विंड एंड 3 winds आर कैटेगराइज्ड एज परमानेंट विंड. और इसके अलावा कई सारे सीजनल और ड्यूरनल विंड्स भी होते हैं. सो एनी कंफ्यूजन इन प्रेशर बेल्ट एंड परमानेंट विंड सिस्टम? कल में हम लोग डायग्राम से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना. कल तुम लोगों को डायग्राम शेयर करेंगे प्रेशर बेल्ट, हीट बेल्ट और परमानेंट विंड का. ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्ट देन आस्क. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट. 2-2.5 मिनट बचा हुआ है, जल्दी जल्दी पूछो किसी को कुछ पूछना है तो. किसी को कुछ नहीं पूछना है तो रोहिणी से हम पूछते हैं, व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन? यस रोहिणी, व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन? कम ऑन फास्ट रोहिणी, बताओ. ओपन करो वीडियो को जरा देखे, तुमको मिलना चाहते हैं बच्चों से. यस रोहिणी, एनीवन? अमित मिश्रा बताओ, व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन? अरे भाई एक चीज को कितनी बार बताएं, बताओ. कम ऑन फास्ट. सोनाली, हाँ तो सिर्फ यही लिखोगे? हमको पूछना है सदर्न ऑसिलेशन, सिंपली डिफाइन करो. ये तो कारण है सदर्न ऑसिलेशन का. इशिका, डिफिनेशन, गिव मी डेफिनेशन. बहुत कम टाइम है, कुछ सेकंड बचा है, जल्दी जल्दी बताओ. शिविका बताओ बेटा तुम. That is defined as periodic change in the direction of wind. Southern oscillation. हाँ हाँ, due to difference in pressure. Called southern oscillation. Periodic change in the direction of wind due to periodic change in pressure conditions over East Pacific and East Indian Oceans. यही है ना southern oscillation.